Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ritu Agrawal and today's video is for everyone. Either you are doing CA, CS, CMA, CWA, and suppose if you are not from the commerce field, you are a science student but you are investing in share market. You are investing in the stocks of various companies and making easy money. Then too you should watch this video. In this video, I'll be sharing the amendments made by the SEBI in their board meeting which was held a week back. The major amendments were related to the IPOs. SEBI tightens the norms of IPO pertaining to disclosures, end use of the funds and lock-in period and many such other amendments. So for getting better clarity with respect to the amendments made by the SEBI, let's get into the video. Okay, first of all, I am dividing these amendments in the two videos. So let's start with the part 1. And yes, I'll be going from the very scratch, so even the student at executive level, IPCC level, foundation level can relate the things practically while studying the ICDR regulations as a part of syllabus. As we all heard, it's been said that SEBI is the watchdog of securities market and works for the benefit of investors and more particularly for the benefit of retail individual investors. So whatever the amendments are there now will always be for the betterment of investors, for increasing transparency, for disclosure norms. Either directly or indirectly, amendments will benefit investors only. We have seen SEBI every alternate day companies पे penalties लगाती रहती है for the non-compliances performed by them. So one can say that amendments are for the betterment of investors and for increasing transparency. एंड येस, जिन्होंने आईसीडीआर रेगुलेशंस रीड करे हैं एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस एंड जिनकी एग्जाम्स अभी खत्म हुई है और वो ये वीडियो सुन रहे हैं तो वो मुझे ज्यादा प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स. फर्स्ट अमेंडमेंट इज difference between the floor price and the cap price to be at least 105%. After hearing this amendment, the first question is what is price band? So let's learn the meaning of price band first. In book building issue, price band is used to discover a price of the shares and this price band is decided by the company that is issuer of the share in consultation with the investment banker. Now I'll tell you on what basis the price band is decided. So the price band is decided on the basis of similar stocks of the company and the potential growth of the company, on the basis of financials, and there are many other aspects which a company consider in consultation with the investment banker and decides the price band. So now in consultation with the investment banker, company ने price band decide कर दिया. Now what's the role of investor? अब जो कंपनी ने एक प्राइस बैंड डिसाइड किया है, सपोज टेक एन एग्जांपल, कंपनी ने प्राइस बैंड डिसाइड किया है 70 to 90 एंड अब इशू ओपन हो गया. सो इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे फ्रॉम 70 to 90 यू हैव टू डिसाइड वन प्राइस कि आप कौन से प्राइस पे बिड करना चाहते हो फॉर द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड आप वो पर्टिकुलर अमाउंट पे वो कंपनी के शेयर्स के लिए बिड करोगे फ्रॉम 70, 71, 72 टिल 90. जो भी आपको प्राइस लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है वो मुझे इस प्राइस पे मिलना चाहिए या फिर इतनी प्राइस पे मार्केट में आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप बिड करोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ दिस प्राइस बैंड विल प्ले अ रोल इन अलॉटमेंट. सपोज टेक एन एग्जांपल, प्राइस बैंड इज 70 to 90 एंड आपने क्या किया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, आपने जो बिड करी थी यू हैव बिडेड एट द प्राइस ऑफ 74 एंड अब क्या हो गया, इशू क्लोज हो गया, अलॉटमेंट होने वाली है एंड अलॉटमेंट के टाइम पे कट ऑफ प्राइस डिसाइड हुई है 73. आपने 74 पे बिड करा था, कंपनी ने कट ऑफ प्राइस क्या डिसाइड करी है, 73 डिसाइड करी है. सो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा. रीजन बीइंग व्हाट इज द जनरल थॉट इज कि अगर ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर 74 पे शेयर लेने को रेडी था तो ही विल टेक ऑन दैट 73 ऑल्सो एंड वाइस वर्सा. अगर आपने 72 बिड करा था एंड कट ऑफ प्राइस 73 है तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप 72 देने को रेडी थे और कंपनी आपसे 73 मांग रही है, सो हाउ वन कैन थिंक कि आप कम देने को रेडी थे एंड कंपनी आपसे ज्यादा मांग रही है तो आप दे दोगे. सो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस बैंड. नाउ विल डिस्कस ऑन what was the earlier provision pertaining to price band, what is the amendment and what is the reason behind the amendment. The earlier provision with respect to the price band is the maximum difference between the cap price and the floor price should be 20%. The earlier provision speaks about the maximum criteria and the provision after amendment is
the minimum difference between the floor price and cap price to be at least 105%. तो जो पहले का प्रोविजन था was more focused with maximum difference and after amendment provision focus कर रहा है on the minimum difference. So what is the reason behind this amendment? Okay, let me tell you the reason behind this amendment. But first you should be knowing that what is the purpose of this price band. सो प्राइस बैंड का इंटेंशन क्या होता है? प्राइस बैंड इज यूज टू डिस्कवर अ प्राइस कि ये पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर्स है वो क्या प्राइस डिजर्व करते हैं या क्या प्राइस पे मार्केट में आने चाहिए. सो प्राइस डिस्कवर करने के लिए प्राइस बैंड यूज किया जाता है. बट जो पहले वाला प्रोविजन था वो क्या बोलता था? मैक्सिमम डिफरेंस के बारे में, दैट टू ऑफ 20%. सपोज आप फ्लोर प्राइस रखते हो 74 रुपीज एंड उसका आप 20% अगर मैक्सिमम डिफरेंस कवर करने जाओगे दैट इज 84 ओनली. तो 70 to 84 के बीच में आप क्या प्राइस डिस्कवर करोगे? इट्स नॉट लाइक अ बिग लिमिट जिसमें आप प्राइस डिस्कवर कर सको. एंड ये जो प्रोविजंस था प्राइस बैंड के वो क्या हो रहे थे? मिस यूटिलाइज हो रहे थे. आई टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ वन कंपनी दैट इज श्रीराम प्रॉपर्टीज. उसमें क्या हुआ था? प्राइस बैंड वॉज 108 to 110. अब 108 से 110 के अंदर आप क्या प्राइस डिस्कवर करोगे? सिर्फ हार्डली 2 या 3 रुपए का डिफरेंस है वहां पे. सो द प्रोविजन वॉज बीइंग मिस यूटिलाइज्ड एंड उस मिस यूटिलाइजेशन को रोकने के लिए, लूप होल को कॉप अप करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया ताकि जो इस प्रोविजन का पर्पस है कि आपको प्राइस डिस्कवर करना है वो फुलफिल हो सके. सो आई होप आप इस चीज को प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे हो कि दिस अमेंडमेंट इज नीडेड एंड ये अमेंडमेंट आया है फाइनली क्योंकि जो पर्पस था वही डिफीट हो रहा था. तो अल्टीमेट पर्पस इज कि उस प्रोविजन का मतलब क्या है अगर आप प्राइस डिस्कवरी नहीं कर रहे हो तो. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइस बैंड एंड नाउ कम्स टू द सेकंड अमेंडमेंट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑफर फॉर सेल. द अमेंडमेंट इज इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल द sellers who have stake of more than 20% can offer maximum half of their shareholding in an IPO as a offer for sale. So this is the amendment and earlier provision with respect to offer for sale is कि जो existing shareholders है, promoters है, वो अपनी पूरी शेयर होल्डिंग भी एज अ IPO पब्लिक को दे सकते हैं. उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि उनको अपना 10% ही देना है या 20% ही देना है. अगर वो अपनी पूरी शेयर होल्डिंग एज एन IPO पब्लिक को देना चाहते हैं तो वो दे सकते थे. एंड आफ्टर अमेंडमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शन लाया गया ऑफ 50%. अगर आप 20% से ज्यादा कोई कंपनी के अंदर होल्ड करते हो एंड IPO के टाइम पे आप अपने शेयर्स पब्लिक को देना चाहते हो तो आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते. आपको भी थोड़े होल्ड करके रखने पड़ेंगे. आप अपने पूरे शेयर्स पब्लिक को नहीं दे सकते. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अमेंडमेंट? फर्स्ट गिव अ थॉट कि कंपनीज IPOs क्यों लेकर आती है. सो मैंने तो यही पढ़ा था कि कंपनीज IPO लाती है क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता है फॉर दैट XYZ पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स एंड वो IPO लेकर आती है एंड खुद को पब्लिक कर देती है. बट व्हाट कंपनीज आर डूइंग ना, कंपनीज आर मिस यूटिलाइजिंग द प्रोविजंस एंड वो क्या कर रहे थे? IPOs लेकर आ रहे थे फॉर प्रोवाइडिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स. प्रमोटर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या कर रहे थे? IPOs लेकर आते थे. और IPO क्या होता था? पूरा ऑफर फॉर सेल. क्योंकि अर्लियर प्रोविजंस में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप 10% ही दे सकते हो या 20% ही दे सकते हो. तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो होते थे, जो 90%, 80%, 70% अगर होल्डिंग रखते थे, वो अपनी पूरी शेयर होल्डिंग क्या करते थे? पब्लिक को दे देते थे. एंड इफ आई शेयर यू द एग्जाम्पल ऑफ कंपनी जो कि एंटायरली ऑफर फॉर सेल थी इज कारट्रेड. कारट्रेड का अगर IPO देखोगे ना इज रियली अ क्लासिक एग्जाम्पल जो पूरा क्या था? ऑफर फॉर सेल था. एंटायर IPO ऑफ कारट्रेड इज ऑफर फॉर सेल एंड वॉज एंडेड अप ऑन लिस्टिंग विथ डिस्काउंट. कारट्रेड डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस अमेंडमेंट. Now comes to the third amendment and the amendment is with respect to end use of IPO proceeds. So the amendment is end use of IPO proceeds is to be monitored by credit rating agencies. The earlier provision with respect to the monitoring agency is कि when the issue is of more than 100 crores then only monitoring agencies will monitor the end use of the proceeds. But now after amendment डिस्पाइट ऑफ द अमाउंट कि आपका इशू कितने का है, 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, कितने का भी है, उसको कंसिडर किए बिना मॉनिटरिंग एजेंसीज आपका जो IPO प्रोसीड्स है उसको मॉनिटर करेगी, उसके एंड यूज को मॉनिटर करेगी. कब तक मॉनिटर करेगी? जब तक आप 100% ऑफ द IPO प्रोसीड्स को यूटिलाइज नहीं कर देते हो. तो दिस इज द ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर प्रोविजन एंड द प्रोविजन आफ्टर अमेंडमेंट. Now what is the reason behind this amendment? The reason being after collecting money there is no one to ensure
कि जो आईपीओ प्रोसीड्स है वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, एंड द कंपनीज आर नॉट दैट प्रोएक्टिव कि वो सामने से ये चीज पब्लिक को इन्फॉर्म करे कि वेर दे आर यूटिलाइजिंग द मनी. एंड व्हाट वाज हैपनिंग ना, मेनी कंपनीज एट द टाइम ऑफ फंड रेजिंग कोई और ऑब्जेक्ट बताते थे पब्लिक को, एंड आफ्टर फंड रेजिंग जो आईपीओ प्रोसीड्स थी वो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज करते थे. सो टू स्टॉप दिस एंड स्टॉप द मिस यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स, दिस अमेंडमेंट was came out. So it is necessary to monitor what companies are ultimately doing with the public money. And yes, it's being said SEBI is the watchdog of securities market and work for the benefit of investors. Hence proved. Now comes to the Fourth Amendment, and the Fourth Amendment is related to the lock-in of the shares held by the anchor investors. So first we'll learn what is the meaning of anchor investors. So anchor investors are those qualified institutional buyers who make an application of more than 10 crore rupees. जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 10 करोड़ से ज्यादा की एप्लीकेशन करते हैं इन एन आईपीओ आर कॉल्ड एंकर इन्वेस्टर्स. एंकर इन्वेस्टर्स कैन बी म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एक्सेट्रा. एंड जनरली जो अलॉटमेंट होती है टू द एंकर इन्वेस्टर्स वो डिस्क्रिशनरी बेसिस पे होती है. एंड जनरली एंकर बुक ओपन्स बिफोर 2 days ऑफ आईपीओ. सो द QIBs विच इन्वेस्ट मोर देन 10 करोड़ कैन अप्लाई before the retail individual investors. And yes, if you are applying in the share market, this is one of the aspect which you should consider before investing. So this is all about the anchor investor. Now what was the earlier provision? Earlier provision is कि anchor investors की जो शेयर होल्डिंग होती थी उसका लॉक इन होता था 30 days. एंड आफ्टर 30 days अगर आपको अपना पूरा शेयर होल्डिंग सेल आउट करना है तो यू कैन, एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. ऐसा ही करते थे वो लोग. बट आफ्टर अमेंडमेंट द प्रोविजन इज कि एंकर इन्वेस्टर्स हैव टू होल्ड एटलीस्ट 50% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग फॉर 90 days. तो उनको अब अपना जो 50% ऑफ शेयर होल्डिंग है फॉर 90 days होल्ड करना है. आफ्टर 30 days अगर वो सेल आउट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 50% वो सेल कर सकते हैं, एंड 50% उनको फॉर द नेक्स्ट 60 days आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 days उनको होल्ड करके रखना पड़े. नाउ कम्स टू द रीजन बिहाइंड दिस अमेंडमेंट. आई स्टार्ट विद एग्जाम्पल. इन केस ऑफ पेटीएम, जिस दिन 30 days पूरे खत्म हुए एंड एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन था वो कंप्लीट हुआ, उस दिन क्या हुआ, सारे एंकर इन्वेस्टर्स ने अपनी 100% ऑफ शेयर होल्डिंग क्या कर दी, सेल आउट कर दी इन केस ऑफ पेटीएम. सो उसकी वजह से ऑन द वेरी सेम डे द प्राइस ऑफ पेटीएम फॉल्स बाय 13%. वो पर्टिकुलर जो शेयर्स थे पेटीएम के उनकी जो प्राइस थी गोज डाउन बाय 13%. सो दिस वाज द इम्पैक्ट. जैसे ही एंकर इन्वेस्टर्स ने अपनी पूरी शेयर होल्डिंग सेल आउट करी, पेटीएम का जो पूरा प्राइस था वो क्या हो गया, एकदम सडनली नीचे आ गया. सो हियर कम्स द क्वेश्चन कि अगर एंकर इन्वेस्टर्स को ऑन द वेरी 30th डे जैसे ही लॉक इन उनका खत्म होता है उनको पूरी 100% ऑफ शेयर होल्डिंग अपनी सेल आउट करनी थी, तो वाई दे इन्वेस्टेड, उन्होंने इन्वेस्ट ही क्यों किया. सो दे इन्वेस्टेड फॉर द सेक ऑफ एंडोर्सिंग द इश्यू. उन्होंने सिर्फ आईपीओ को एंडोर्स करने के लिए इन्वेस्ट किया था, क्योंकि दिस इज द एस्पेक्ट जो जनरली रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कंसिडर करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग. जितनी एंकर बुक अच्छी होती है उतने ज्यादा आरआईआई इन्वेस्ट करते हैं. इसलिए एंकर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आईपीओ को एंडोर्स करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं. सो टू स्टॉप द मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोविजंस, दिस अमेंडमेंट केम आउट, and more particularly now that anchor investors will think twice before investing, because 90 days is a huge commitment, and it's being said that securities market is not only for trading, it's for investing as well. Now comes to the fifth amendment, or I can say the last amendment for this video, is the persons who are rejected by the shareholder for directorship can only be appointed only with the consent of shareholders. So this is the fifth amendment, and I want you all to find out the reason behind this amendment. This is not really that hard. If you will think for a minute now with full concentration, you will find a reason behind this amendment. So share your opinions in the comment section so I can let you know if you have mistaken somewhere. And in the next video, in the part 2, I'll start with the reason behind this amendment only. So I'm ending this video here, and in the next video we'll see the other few amendments. And yes, don't forget to hit the like and subscribe button so you will be notified for the next video. And bye bye.